Waiting for Ranjita only. Okay, so we can start. So the unit 4 of this syllabus of the law, that is law of crime. In yesterday's class also we were discussing about this. So there are total 10 topics. Again, I am giving a recap, revision of the yesterday's class. General principles of criminal liability, stages of crime, general exceptions, offenses against human body, against state, terrorism, property, right? Women, children, drug trafficking, counterfeiting, offense against public tranquility, and theories and kinds of punishment. So now we are going to start again about the basics. In yesterday's class we discussed. Today also I am going to discuss something because yesterday the recording was not possible firstly, and also Kajol is new joinee today, so I just want to just revise in the next 13 to 15 minutes, and then we'll continue with the next topic. General principles of criminal liability. So there is a maxim in criminal law: actus non ficit reum nisi mansit rea. This is the maxim which is directly asked in the exam, in so many exams. Actus non ficit reum nisi mens sit rea. That means guilty mind and guilty act constitute crime together. But there are some exceptions, very few exceptions I can say, where only your act is there, but your mind is not, your guilty mind is not there, but your act is there, and for that also you are liable to be punished. So the first topic is general principles of criminal liability. We are dealing actus reus and mens rea. These two terms are the Latin term. Actus reus and mens rea. Actus reus means guilty act. Mens rea means guilty mind. So जब भी कोई एक्ट आप कर रहे हैं, और जब भी कोई एक्ट आप सोच समझ के कर रहे हैं, लेकिन उस समय जो आप सोच रहे हैं वो एक गिल्टी इंटेंशन के साथ में है, so we can say that this is a criminal act. Crime can be classified in two things. First is the legal crime and second one is the moral crime. लीगल क्राइम्स वो क्राइम रहेंगे जिनका पनिशमेंट है इन द लॉ, बट मोरल क्राइम्स वो क्राइम है जिनका पनिशमेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो एक समुद्र है या नदी है जिसमें डूब रहा है, और आप अच्छे एक स्विमर हैं लेकिन आप उसको नहीं बचाते, so it is not your legal duty to protect someone or to save the life of someone, because you are not there as a protector or as a saver. It is not your duty. It is only the skill that you know, and it is not your duty to protect. So here you have committed the moral wrong. In society, morality prevails. Okay? As per the morality, there should not be live-in relationship in the society. So that is morals. But law has recognized in the Domestic Violence Act that live-in relationship is also covered under domestic violence, and if there is any dispute between husband and wife, so domestic violence will be applicable and the orders can be passed. So morality is something which is not punishable under the criminal law, right? Only legal wrongs are punishable. And what are legal wrongs? Legal wrongs are basically what acts or omission which are punishable by the law. If you go with the definition of the offense, the term offense, which is defined under Bharatiya Nyaya Sanhita,
So the offense term specifically says an act or omission punishable by law is an offense. कोई भी act जब आप कुछ कर रहे हैं जिसका कुछ punishment है, या जहां आपकी ड्यूटी है कुछ करने की और आप omit कर रहे हैं, you are omitting, then it is an offense and it is punishable by law, then it becomes an offense. So the picture comes that what are the offenses or what are the circumstances or what are the acts where only one element is there, that is the act, but guilty mind is not there, and you are going to punish it. For example, there is a offense of public nuisance. आपका इंटेंशन नहीं है सोसाइटी में गंदगी फैलाने का या सोसाइटी में किसी भी एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट को क्रिएट करने का, बट आप आपके घर के अंदर से जो भी कचरा आता है उसको जो घर के बाहर एक गाड़ी आती है उसमें ना डालने की जगह आप सड़क पे फैलाते हैं। सड़क पे फैलाने से वहां पे मक्खियां आती है, बदबू आती है, आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको परेशानी होती है। द ऑफेंस यू आर कमिटिंग हियर इज द ऑफेंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। ऑल्दो यू कैन से कि मेरा किसी को हार्म करने का इंटेंशन नहीं है, मैं तो मेरे घर का कचरा घर से उठा के बाहर फेंक देता हूँ, बट स्टिल this offense does not require both the essentials of crime, that guilty act and guilty mind constitute together for the crime. Here, your act is only enough for the offense. So, there are some types of offenses which are punishable without guilty intention, also. Clear? A list of those offenses, that what all those offenses are there, I'll dictate you maybe in today's class before the ending or in tomorrow's class definitely, that what all the offenses which are punishable without guilty mind. Clear? I hope this is clear for both of you. Is it clear? You can show thumb. Okay. Now, then in yesterday's class, we discussed about the individual liability, group liability, and constructive liability. So individual liability means you as an offender, if you're committing, so you are liable as an individual because you are doing something, either act or omission, which is punishable by law, you are liable. Then group liability when then in a group several person with the same intention, common intention, they are entering into an agreement and then they are committing some offense. That topic, the term is also known as common intention. So in that, although you have not committed the actual offense but you was part of that group, you will be liable. That is group liability. Constructive liability is also you are not directly part of the group, you know there is a protest going on, you are a part of that भीड़, उस भीड़ का आप हिस्सा बने हुए हैं कि यस 3 कानून हैं वापस लीजिए, नए कानून खराब हैं, या कृषि कानून है जो एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के लिए लॉ लेके आए वो सब खराब हैं, हम दंगा करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, वॉट एवर यू आर द पार्ट, तो constructive liability is applicable on you, you will be punishable for that, although you have not committed any particular offense in that area or any one of those people that have has committed any offense. For that also all the group members, all the people who are protesting, they will be liable in the same case. Okay. In yesterday's class, we were also discussing about the basics of BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita, that is 2023 law, which was enacted on 25th December 2023, enforced on 1st July 2024, and the act number is 45 of 2023. So the important thing you must know as you both are going to enter into the teaching field, one of you is a teacher also, there is a difference between the enactment and enforcement. So what is the difference? So the difference is enactment date is the date when the president of India sign any bill and that bill becomes the law. Enforcement date is the date on which that law came into force. And the time period given for this, the purpose of giving the time period is
so that people can understand the law. The people on which the citizen on which the law is going to be applicable, they can understand the law, that this is the law which is going to be applicable on us. Therefore, the time is given between the enactment and enforcement date. Okay. Next, we have the section number 1. In yesterday's class, we also discussed about section number 1. Section number 1 says the short title, that is Bharatiya Nyaya Samhita, we can call. Then, any person committing the offense in Indian territory, he will be punishable as per the Bharatiya Nyaya Samhita. Then we discussed that if you are a citizen of this country and you are going somewhere and you are committing an offense, then whenever you will be tried, so the Indian laws will be applicable on your trial and you will be punished accordingly. Then in section 1 we also discussed about that if any person who is in the aircraft or ship which is registered in India and committing an offense, you can be tried in India wherever you will found. Then any citizen committing an offense outside of the territory of India, still that person can be that can be punished in India wherever he will be found. But it may be possible that you can take the defense that the offense which is punishable in India is not punishable in that country where the offense was committed. That defense is not allowed. Just because the offense is not punishable in another country and the offense is punishable in this India, so you are taking the defense that I committed there and this should not be, I should not be punished, but it is not allowed. You will be punished because you are an Indian citizen and you committed the offense. And the last is if a person is targeting the computer resource from anywhere in the world and computer resource locating in India, then you will be liable and you will be punished. And how you will be arrested and migrated, so for this we have our international law including the law of extradition, where if the person has committed is the offender of any offense, so by the law treaty of extradition the person can be taken from that country. Next we discussed in this section number 1 only about that army, navy, air force, they have their special law related to the mutiny and desertion. So if the officer, sailor, airman, if any officer of the armed forces if doing any kind of mutiny or desertion, these law will be the main laws and BNS has no effect in that. Then we discussed about section number 2, that was the definition clause. So in yesterday's class we discussed about 4 definition. In today's class we will continue with the next 4 definitions. So the first 4 definition was act denotes as well series of acts as a single act. एक बार आप एक्ट कर लो या बार बार आप एक्ट कर लो, उन सब के लिए हम जो टर्म यूज करेंगे दैट विल बी द एक्ट. And in yesterday's class also I discussed about capital ACT and small ACT. Capital ACT is act is the law. Small ACT is a action, right? So here it is talking about action. So आप किसी चीज के लिए एक बार एक्शन करें, 2 बार एक्शन करें, 5 बार एक्शन करें, that will be amount as act only. Clear? Animal is living creature other than human being. जो भी लिविंग क्रिएचर है लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं है, दैट इज एनिमल. चाइल्ड इज लेस देन 18 ईयर, जो भी है ब्लू 18 ईयर, सब चाइल्ड है. काउंटरफीट डेफिनेशन वी यस्टरडे डिस्कस दैट अगर आप किसी भी चीज को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो उसके जैसा रिजेंबल करे, उसके जैसा दिखे, तो आप काउंटरफीट कर रहे हो और आपका इंटेंशन ये है कि जो आपने कॉपी बनाई है उस पे किसी को धोखा दिया जा सके या धोखा हो सकता है किसी के साथ पहचानने में कि असली या नकली कौन सा है. और आपका ये पर्पस है या नहीं है कि मैं किसी को धोखा दूं या ना दूं, ये जब तक हम नहीं मानेंगे जब तक कि आप कोई अच्छा सा एविडेंस ना दे दें कि आपका पर्पस ये नहीं था कि मैं धोखा देना चाहता हूं. और जो एक्सप्लेनेशन ये 2 का एक्सप्लेनेशन 2 है और एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा है कि काउंटर फिटिंग जब आप कर रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, तो दोनों चीजें एकदम से एक जैसी सेम बननी चाहिए तभी काउंटर फिटिंग होगी. तो ऐसा नहीं है, अगर थोड़ी कुछ कमी रह गई है
देन ऑल्सो काउंटर फिटिंग वाली बात में हम आपको कवर करेंगे। आज फर्दर हम पढ़ेंगे अगेन द नेक्स्ट 4 definitions: court, death, dishonesty and document. So court means judge empowered by law to act judicially alone. Or body of judges empowered by law to act judicially as a body. When such judge or body of judges is acting judicially. कोर्ट का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई एक इंडिविजुअल पर्सन, एक जज, जुडिशियली एक्ट करने को तैयार है, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, लॉ ने उसे पावर दी है कि वो जुडिशियली एक्ट कर सकता है। जुडिशियली एक्ट करने का मतलब क्या है कि जो लॉ के लीगल प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को आपको फॉलो करना है, जो गाइडलाइन, जो लॉ बना है, जो प्रिंसिपल है, जो रूल्स रेगुलेशन है, इनफैक्ट देर आर सिविल के रूल, क्रिमिनल के रूल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उनको फॉलो करते हुए जो आपको डिसीजन देना है आप वो देंगे। Then next definition is death. Death means death of human being unless contrary appears from the context. Death का मतलब हम यहाँ पे जब भी पढ़ेंगे तो human being की पढ़ेंगे, animal की death के बारे में कोई बात नहीं है। Unless the context otherwise requires, अगर context जो concept जहाँ पे death लिखा हुआ है जिस भी provision में, अगर उसमें death human being के अलावा किसी और person की है, या not person किसी और animal के बारे में या किसी और चीज के बारे की डेथ हो रही है, तो वहां पे वो कंटेक्स्ट के हिसाब से डिसाइड होगी। अदरवाइज जो यहाँ पे बता दिया है, डेथ इज ह्यूमन बीइंग। Dishonestly means doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person. Now dishonestly का मतलब है किसी एक को धोखा देना है जिससे आप या क्या कर रहे हैं, कुछ गेन कर रहे हैं, या फिर किसी को धोखा दे के सामने वाले को कुछ लॉस कॉज कर रहे हैं। हो सकता है आपको गेन नहीं हुआ लेकिन सामने वाले को लॉस हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैं बचपन में एक स्टूडेंट जो मेरे साथ में बैठा है उसका एक इरेजर को मैं चोरी करता हूँ, तो मैंने क्या किया, उसका इरेजर लिया और मेरे पास मेरे बैग में डाल दिया। तो व्हाट आई डिड, आई कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बेसिकली, बट थेफ्ट में भी डिसऑनेस्टली एक एसेंशियल है। तो डिसऑनेस्टली कहता है सामने वाले को आपने रॉन्गफुल गेन, आपको रॉन्गफुल गेन हुआ और सामने वाले का रॉन्गफुल लॉस हुआ हो, या सामने वाले को आपने किसी थर्ड पर्सन को रॉन्गफुल गेन करा दिया है जिसको नहीं होना चाहिए था। तो गलत तरीके से जो भी चीज आपने गेन कर ली है या किसी का गलत तरीके से लॉस कर दिया है, ये डिसऑनेस्टली। तो जो रबड़ मैंने लिया तो मैंने मेरा रॉन्गफुल गेन किया, मैं एंटाइटल नहीं था उसके लिए, और मैंने सामने वाले का लॉस भी किया। तो इट कैन बी पॉसिबल कि एक टाइम पे रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस दोनों हो रहा है। इट कैन बी पॉसिबल कि सिर्फ रॉन्गफुल गेन ही हो रहा हो किसी को, और इट कैन बी पॉसिबल कि सिर्फ रॉन्गफुल लॉस ही हो रहा हो। एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है, उसकी कोई नोटबुक है जिसमें उसने क्वेश्चन आंसर पूरे अच्छे से लिखे हुए हैं। उस क्वेश्चन आंसर की नोटबुक को मैं क्या करता हूँ, आग में जला देता हूँ। मेरा कुछ गेन हुआ इसमें? नहीं। मैंने आग में क्यों जलाई? कि बस सर्दी है तो हाथ को ठंडे करने में, गर्म करने में काम आएंगे। बट उस बच्चे का मैंने क्या किया है, लॉस किया है। So here only wrongful loss is there. I have not gained anything. Still dishonestly is there. I hope the definition is clear. My intention is to causing wrongful gain to one person or causing wrongful loss to another person. Clear? Dishonestly. Next is document. Document means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, marks, or by more than one of those means, and includes electronic and digital record intended to be used or which may be used as evidence of that matter. जो ये definition है ना document का, this definition is also defined under Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Earlier it was Indian Evidence Act. वहां पे डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन में जो बात लिखी है वो लिखी है कि जिसका पर्पस है कि किसी चीज को वो काम में आए, किसमें, प्रूव करने, डिस्प्रूव करने में, और कोई भी ऐसी चीज जो वहां पे एक्सप्रेस्ड है या डिस्क्राइब्ड है बाय लेटर, फिगर, मार्क्स और एनी ऑफ देम और ऑल ऑफ देम, और जो
एविडेंस को रिकॉर्ड करने का काम कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे सबसेक्शन 8 में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में क्या लिखा है, कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस किया है या डिस्क्राइब किया है अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पे, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। लेटर ए बी सी डी, अ आ ई ऊ, हिंदी इंग्लिश जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबके लेटर्स, फिगर किसी भी तरह का फिगर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, मार्क्स किसी भी तरह का एरो का निशान है, कुछ भी है, दैट मार्क्स। और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, इनमें तीनों को मिला के, दोनों को मिला के, किसी एक को मिला के भी हो सकता है। इंक्लूडिंग electronic and digital record. Electronic and digital record is also included in that. So if anything which you are typing on WhatsApp, on Instagram, on Google, on Facebook, everything is comes under this purview, in the purview of electronic and digital record, intended to be used or which may be used as evidence of that matter. आपका इंटेंशन है कि वो एक एविडेंस की तरह यूज किया जाए, या फिर वो यूज की जा सकती है जब भी जरूरत पड़ी एज एन एविडेंस, तो वो चीज डॉक्यूमेंट कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग हैप्पी बर्थडे ऑन अ केक, तो योर पर्पज इज recording a matter on any substance. If your intention is to be used as evidence, that cake can be used as evidence, then the cake is the document as per the definition of भारतीय न्याय संहिता। दीवारों पे जो दिल बना के लिख के आ जाते हैं, that also amounts to document if it is used for the purpose of evidence. तो कंडीशन इज, एविडेंस के लिए अगर वो यूज में आने वाली चीज है तो वो डॉक्यूमेंट। Explanation 1. It is immaterial by what means or upon what substance the letter, figure, marks are formed, or whether the evidence is intended for or may be used in a court or not. ये मैटर नहीं करता है कि किस सब्सटेंस पे वो चीज लिखी गई है, कौन से तरीके से लिखी गई है, what means और upon what substance, किस तरीके से और किस चीज पे लिखी गई है, चौक से लिखा है, खून से लिखा है, पेन से लिखा है। इट इज इमटेरियल। किस जगह लिखा है, टॉयलेट में लिखा है, घर में लिखा है, पहाड़ पे लिखा है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट पे लिखा है, या एलिफेंटा केव्स में जाके लिखा है, इट इज ऑल्सो इमटेरियल। The letter, figure, marks are formed, और whether the evidence is intended for or may be used in a court or not, और कोर्ट में उसका इस्तेमाल होगा या नहीं होगा इस इंटेंशन के साथ है या नहीं है, ये चीज भी मैटर नहीं करती है फॉर मेकिंग एनी सब्सटेंस एज डॉक्यूमेंट। कि हम इसको कोर्ट में इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, इट इज इमटेरियल। कि हम इसलिए लिख रहे हैं कि कोर्ट में इस्तेमाल होगा, या इसलिए लिख रहे हैं कोर्ट में इस्तेमाल नहीं होगा, ये वाली बात मैटर नहीं करती है फॉर द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। नाउ देयर आर 5 illustrations. All the illustrations are very important. सारे के सारे illustration एक ना एक बार एग्जाम्स में पूछे हुए। Not in this UGC net तो judiciary, not in judiciary so APO, not in APO or in any other government exam that I have seen the papers of so many exams and they have asked. Writing expressing the terms of contract which may be used as evidence of contract is a document. Contract का deed जो आपने बनाया है, वो document जो बना है, agreement जो बना है, that is a document. Check upon a banker is a document. Banker को आपने जो check दिया है वो एक document है. Power of attorney is a document. Power of attorney में आप आपका right transfer करते हैं either for all the things or for a particular thing, जिसमें आप बोलते हैं कि मेरे behalf पे ये काम करेंगे, तो power of attorney is a document. Map or plan which is intended to be used or which may be used as evidence is a document. जो मैप या प्लान अगर किसी एविडेंस में काम में लिया जा सकता है, उसका इंटेंशन ऐसा है कि यूज में लिया जाए, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है. राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन इज अ डॉक्यूमेंट. किसी चीज में डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट है. मैप और प्लान का यूज हो रहा है तो एज एन एविडेंस तो वो डॉक्यूमेंट है. बाकी चीजों के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा
कि इसका यूज हो रहा है एविडेंस के लिए या यूज हो सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट है। क्योंकि बाकी चीजों को आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, all these things definitely come in the picture whenever any issue is there related to these things. अगर a person is saying कि पावर ऑफ अटॉर्नी में मेरा नाम तो नहीं है, या मेरा नाम था पावर ऑफ अटॉर्नी में, उसका नहीं था, उसने कैसे कर दिया ये एक्ट, तो पावर ऑफ अटॉर्नी will automatically become the evidence in that. That is why it is a document. बट मैप या प्लान जो है वो कब बनेगा, उसके लिए इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया कि अगर एविडेंस के आप यूज में लेना चाहते हैं देन इट इज डॉक्यूमेंट। एक्सप्लेनेशन 2 पे आते हैं हम, सबसेक्शन 8 डॉक्यूमेंट हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 में। whatever is expressed by means of letters, figures or marks as explained by mercantile or other uses shall deem to be expressed by such letter, figure, marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed. Mercantile is basically when there is a commercial transaction. कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन में अगर किसी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को किसी तरीके से लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल सेबी इज द अथॉरिटी जो आपका शेयर्स वगैरह को डील करती है, तो शेयर में अप हुआ है, राइज हुआ है, तो उसके लिए दे हैव डिनोटेड एक बुल बना दिया और एक बफेलो बना दिया। तो दीज टू एनिमल डज नॉट मीन एक्चुअली कि ये एनिमल की बात हो रही है। फॉर मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन अगर कोई ऐसा वर्ड फिगर मार्क जो यूज हो रहा है, तो वो वर्ड फिगर मार्क को उसी मीनिंग में लिया जाएगा, ना कि उसका एक्चुअल क्या मीनिंग निकल के आ रहा है उस तरीके से समझा जाए। So in commercial transaction sometimes we just write total amount this. So total amount just we are making a line, and also there is another, you can say when you want to give any check to anyone, so on check if you are double cross at the left corner, that means account pay check, जिसका नाम लिखा है उसी के अकाउंट में जमा होना चाहिए, किसी और के अकाउंट में जमा नहीं हो सकता। तो दिस इज अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन, मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन। तो जो लेटर फिगर मार्क्स का जिस ट्रांजेक्शन के हिसाब से यूज हो रहा है मर्केंटाइल, वो उसी मार्क्स के हिसाब से समझा जाए। आप उसको ये नहीं बोल सकते तो रेल की पटरी बना दी है चेक के ऊपर, इट इज नॉट रेल की पटरी, इट इज द mercantile transaction, mercantile mark which is used. Clear? Other uses, other type of things, other type of activity which is going on in mercantile business, so all these things are covered. I hope all these 8 definitions are clear to you. Every day please at least make short notes of whatever we are dealing in the class, not only in my class but also of Rahul sir, so that you can cover the subjects very smoothly. And we are very much serious about your results this time, because this is our new venture and we want 100% selection ratio, so please focus accordingly. Now we are discussing about another thing, that is stages of crime and inchoate crime, and then again I'll come to the liability, the individual liability, group liability, constructive liability. But today's class we are discussing, in today's class we will discuss stages of crime, inchoate crime. Okay. Yesterday's class also we were discussing about the stages crime. Again I'm repeating. There are 4 stages of crime. Crime की 4 stages होती हैं. Intention, preparation, attempt, accomplishment. Intention, preparation, attempt, accomplishment. Intention is the mental state, यहाँ से जो चलता है. प्रिपरेशन, यहाँ जब सोचा कि मर्डर करना है तो प्रिपरेशन क्या करनी है, चाकू खरीदना है, तलवार खरीदनी है, बंदूक खरीदनी है, जहर खरीदना है या ड्रम खरीदना है. प्रिपरेशन, नीला कलर का ड्रम खरीदना है, स्पेशल प्रिपरेशन as which is going on in the society. Third is attempt, when you are actually attempting that act, and when the act is attempted, so if it is successful then it is a particular offense, if you are unsuccessful then it will cover under attempt.
That is why attempt, abatement, and criminal conspiracy, these three things are known as inchoate crime. Inchoate crime means incomplete crime. The crime is not completely committed by the person. That is why we are saying inchoate crime. सो आपने बंदूक का निशाना लगाया, बंदूक की गोली चलाई, बंदूक की गोली लग गई, सामने वाले की डेथ हो गई, मर्डर। बंदूक की गोली से वो बच के निकल गया, बगल में से निकल गई, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो अटेम्प्ट टू मर्डर इज एन ऑफेंस एंड यू विल बी पनिशेबल for all offenses. If you are attempting, then it is an offense. Some offenses are specifically defined in Bharatiya Nyaya Samhita related to attempt, but most of the offenses there is a provision of attempt that for any offense, if attempt is committed, one half of the total imprisonment or total punishment can be given in the attempt. So please open section number 62 of भारतीय न्याय संहिता. 62 is punishment for attempting to commit offences punishable with imprisonment for life or other imprisonment. तो मैंने आपको बताया कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली प्रॉपरली अटेम्प्ट के पनिशमेंट के लिए डिफाइंड एक्सप्रेस किए हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रॉपरली नहीं है, तो उनके लिए सेक्शन 62 की रीडिंग साथ में की जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक किसी को झापट मारा, यू हर्ट समवन बाय स्लैपिंग, तो जो आपने स्लैप किया सामने वाले को, उससे उसको हर्ट हुआ. अब आप भारतीय न्याय संहिता चेक करेंगे तो वहां पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है अटेम्प्ट टू हर्ट का पनिशमेंट. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सेक्शन 62 और हर्ट का जो ऑफेंस का पनिशमेंट है, उस प्रोविजन को दोनों की साथ में रीडिंग की जाएगी और ये बोला जाएगा कि ये हर्ट है और इसका अटेम्प्ट हुआ है, अटेम्प्ट 62 के हिसाब से पनिशेबल है. तो हर्ट का जो पनिशमेंट है वो 62 में जो पनिशमेंट दिया हुआ है उसको कोलैबोरेट करके पनिशमेंट दे दीजिए. तो 62 जब अटेम्प्ट आप पढ़ेंगे तो इन द लास्ट सेकेंड लास्ट लाइन दे हैव गिवन द पनिशमेंट, वन हाफ ऑफ द longest term of imprisonment provided for that offense or with such fine as provided for the offense or with both. बोल रहे हैं कि जो इम्प्रिजमेंट का पनिशमेंट दिया है हाईएस्ट, उसका वन हाफ कर दो, और जो फाइन है जितना लगाना है, उसमें अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है पर्टिकुलर प्रोविजन में कि इतना फाइन, तो फाइन उतना लगाया जा सकता है. और कोर्ट की मर्जी है, या तो वो पूरा वन हाफ इम्प्रिजमेंट तक दे सकते हैं, मैक्सिमम इज वन हाफ. ऐसा नहीं है कि वन हाफ है तो वन हाफ पूरा देना है, इट इज द डिस्क्रिप्शन, वन हाफ में से कितना देना है, मैक्सिमम इज वन हाफ फॉर अटेम्प्ट. फाइन पूरा देना है या आधा देना है या 1 रुपया लगाना है, अगेन डिस्क्रिप्शन, दोनों में से कोई एक या दोनों ये कोर्ट कर सकता है फॉर द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट. एक कंफ्यूजन अब आपके दिमाग में आ सकता है, बोले कि अगर मान लीजिए किसी ऑफेंस का पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, आजीवन कारावास, जब तक सांसें हैं तब तक जेल में रहना है, और उस ऑफेंस का अगर अटेम्प्ट हुआ तो पनिशमेंट कितना होगा, क्योंकि अटेम्प्ट कहता है वन हाफ होना चाहिए टोटल इम्प्रिजमेंट का. अब लाइफ इम्प्रिजमेंट का हमें पता ही नहीं है टोटल कितना है. सो फॉर दिस भारतीय न्याय संहिता as well as in Indian Penal Code also, they have specifically given the fraction of imprisonment for life. Please open section number 6 of Bharatiya Nyaya Samhita. Section 6 is fractions of terms of punishment. In calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years unless otherwise provided. बोले आजीवन कारावास को अगर हमें कभी काउंट करने की जरूरत पड़ जाए और उसका फ्रैक्शन करना पड़ जाए तो उसको हमको 20 साल का मानना है.
सो अगर ऑफेंस का पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो उसको क्या मानना है कि इस ऑफेंस का पनिशमेंट है 20 साल। फॉर अटेम्प्ट, अगर हम अटेम्प्ट में काउंट कर रहे हैं कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ को आपको 1 ऑफ करना है, तो 1 ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ को लिए क्या करेंगे, हमको चाहिए कितना अमाउंट, कितना टाइम पीरियड है, तो यहाँ बता दिया कि उसको 20 साल मानना, तो 20 साल मान के उसका 1 ऑफ दे दो, मतलब 10 साल तक की पनिशमेंट आपको दी जा सकती है उस ऑफेंस में जिसका आप अटेम्प्ट करते हैं, और उसका पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अटेम्प्ट में 1 हाफ मिलेगा या फाइन मिलेगा या दोनों। अटेम्प्ट में इम्प्रिजमेंट के साथ फाइन भी दिया जा सकता है। So that is section 62 talking about for the offense of attempt. पूरा आप रीड करेंगे 62 में आपको मिलेगा कि अगर अटेम्प्ट के प्रोविजन स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रोविजन चेक करेंगे, सो दे हैव स्पेसिफिकली डिफाइन अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, राइट, अटेम्प्ट टू रॉबरी, दीज आर द ऑफेंसेस विच आर क्लियरली मेंशन्ड। तो वहां जो ऑफेंस का पनिशमेंट लिखा है रॉबरी, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, वही मिलेगा। लेकिन जहां स्पेसिफिकली अटेम्प्ट की प्रोविजन नहीं है, उनके लिए सेक्शन 62 इज द गॉड फादर। देख लीजिए, अटेम्प्ट टू मर्डर इज गिवन अंडर अटेम्प्ट टू मर्डर इज 109, attempt to commit culpable homicide 110. Also there are various offenses of attempt, and another offense of attempt to robbery or dacoity, that is section 312, attempt to commit robbery or dacoity. Clear? Okay, so now again I'm repeating, there are 4 stages. One is intention, second one is preparation, third one is attempt, fourth one is accomplishment. अकम्पलिशमेंट होगा, ऑफेंस पूरा हो गया तो एक्चुअल ऑफेंस, ऑफेंस नहीं हुआ बच गया तो अटेम्प्ट। क्लियर? तो अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट है उसमें। अब एक और इससे पहले का जो हमने पढ़ा, दैट इज प्रिपरेशन, कि अगर मैं किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए प्रिपरेशन करता हूं, क्या वो भी पनिशेबल है फॉर एवरी ऑफेंस? आंसर इज नो। हर ऑफेंस की प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है, बट स्टिल देयर आर सम ऑफेंसेस जिनकी प्रिपरेशन पनिशेबल है still. As you can see in your syllabus, there is a topic in unit 4, topic number 5, offenses against state. State मतलब इंडिया पूरा, उसको हम एज ए स्टेट बोल रहे हैं यहाँ पे, और उससे रिलेटेड जो भी आप ऑफेंस कर रहे हैं, सो वो उस चैप्टर में दिए हुए हैं। फॉर दिस वी हैव चैप्टर नंबर 7, सेक्शन 147। सेक्शन 147 का हेडिंग आप पढ़ेंगे, लिखा है वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज और अबेटिंग वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पिक्चर जो है वो एक क्या चीज क्लियर कर रही है, ये तो कर रही है बोले कि आप या तो ऑफेंस वेजिंग वॉर कर रहे हैं, भारत के अगेंस्ट में विद्रोह कर रहे हैं, देश विद्रोह कर रहे हैं, देशद्रोह करने वाले का, नॉट देशद्रोह, देश के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वेजिंग वॉर नहीं कन्वर्ट हो रहा, तो आपको अटेम्प्ट में। अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको भी थोड़े टाइम के लिए रोक दीजिए। यहाँ पे आपको एक प्रोविजन और मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एक्ट, अगर इस चैप्टर में नहीं मिलता है तो फिर प्रिपरेशन आपको मिलेगा, अगेन प्रिपरेशन फॉर डेकॉइटी का जो प्रोविजन है, प्रिपरेशन फॉर रॉबरी,
प्लीज ओपन सेक्शन 309 फॉर अ व्हाइल। 309 एक बार आप चेक करेंगे, जिसमें आपको प्रिपरेशन का भी पनिशमेंट देखने को मिलेगा। क्या आपने प्रिपेयर किया तो भी आपको पनिशमेंट है, और प्रिपरेशन नहीं तो डेकॉइटी होगा वो। यस, सेक्शन 310 सबसेक्शन 4 is dealing with preparation. Section 310 subsection 4 is dealing with preparation. Whoever makes any preparation for committing dacoity, अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं dacoity करने के लिए, so it is a punishable offense and imprisonment up to 10 year, also liable for fine. अगर आपने प्रिपेयर किया, dacoity करने की प्रिपरेशन करी, so this preparation is punishable. अभी तक हम देख रहे थे कि अकम्प्लिशमेंट हो रहा था, ऑफेंस हो रहा था तो पनिशमेंट, फिर हमने कहा कि नहीं नहीं अटेम्प्ट को भी पनिशमेंट देंगे। अब हम देख रहे हैं प्रिपरेशन को भी पनिशमेंट दिया जा रहा है, बट ओनली सर्टेन ऑफेंसेस आर देयर जहाँ पे प्रिपरेशन को पनिशमेंट की बात की गई है। मैं कल की क्लास में आपको और कुछ प्रोविजंस जो प्रिपरेशन को पनिश करने वाले हैं उनके बारे में मेंशन कराऊंगा, जिससे आपका प्रिपरेशन के जितने ऑफेंसेस हैं जो हैं वो सारे एक लिस्ट में तैयार हो जाएंगे कि इन ऑफेंस की प्रिपरेशन भी पनिशेबल है। क्लियर है? नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा एक कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलता है दो लोग मिनिमम, दो या दो से ज्यादा, लेकिन मिनिमम दो, अगर इन्होंने कोई प्लान बनाया, क्या प्लान बनाया कि कोई ऑफेंस कमिट करना है, और उस प्लान बनाने के बाद देयर इज एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन कि मेरा भी सी को मारने का मन है, मेरा भी सी को मारने का मन है, तो एक काम करते हैं, आज शाम को 5 बजे जब वो कॉलेज से बाहर निकलेगा उसको वहीं पे पकड़ के मारेंगे। The moment you are creating an agreement to do an offense or to do an illegal act or to do an legal act by illegal means, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा लोग किसी इलीगल एक्ट को करने को तैयार हैं या फिर किसी लीगल एक्ट को करने को तैयार हैं, लेकिन मीन्स उसके वो इलीगल रहेंगे, कि क्या करना है, बोले कि रणछोड़ दास छाछड़ जो है उसको वायरस का जो पेपर बनाया गया है उसमें उसको राजू को पास कराना है, तो राजू अगर फेल हो जाएगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो हमें क्या करना है, हमें वो पेपर चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पेपर लेने के लिए वायरस की लैब में जा रहे हैं। सो फरहान और रणछोड़ दास छाछड़ दोनों जा रहे हैं पेपर लेने। So they are doing the illegal act, because if you are taking any document and which is a question paper, so you are actually committing the offense of theft. Also some of other offenses can be there, because you are taking the examination paper. So offenses relating to the, in colleges there is misconduct or cheating case, that आपने चीटिंग करी एग्जाम में, उसका केस भी बनाया जा सकता है आपके, तो वो भी ऑफेंस बनाया लगाया जा सकता है। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज टू पीपल एंटरिंग, मिनिमम टू, इट इज नॉट ओनली टू, मिनिमम टू, दो या दो से ज्यादा लोग किसी इलीगल एक्ट को करें या किसी लीगल एक्ट को इलीगल मींस से करने का सोचे, तो इट विल अमाउंट्स टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आया बात समझ में? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। वी कैन जस्ट रेफर द प्रोविजन। Please open section 61. Criminal conspiracy when two or more persons agree with the common object to do or cause to be done. जब दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं, आपस में समझौता करते हैं, क्या करने के लिए, कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ,
उनका ऑब्जेक्ट कि वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या प्लान है कि दोनों को पेपर चाहिए या दोनों को मर्डर करना है, या पर्पस इज वेरी क्लियर कि हमारा ऑब्जेक्ट है कि ये ऑफेंस को अंजाम तक लाना है, टू डू और कॉज टू बी डन, कि ये ऑब्जेक्ट हो जाए या ये ऑब्जेक्ट को अचीव करना है, ये ऑब्जेक्ट को अचीव करना है हमको, या ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हम ये एक्ट करने वाले हैं। क्या करेंगे, या तो हम करेंगे इलीगल एक्ट। तो इलीगल एक्ट इज व्हाट? द टर्म illegal is defined in भारतीय न्याय संहिता अंडर सेक्शन 2 ओनली। आप illegal का डेफिनेशन पे आप चेक करेंगे, illegal JKL सेक्शन 2 सबसेक्शन 50, illegal is defined. Illegal or legally bound to do, these two terms are defined in subsection 15. Illegal is applicable to everything which is an offense. तो इलीगल उन सारी चीजों पे एप्लीकेबल है जो एक ऑफेंस है, पहली चीज। आगे क्या लिखा है? विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और वो चीज हो सकता है अगर ऑफेंस नहीं है तो लॉ ने प्रोहिबिट कर रखी है कि आपको ऐसा नहीं करना है, और लॉ ने अगर प्रोहिबिट कर रखी तो लॉ पेनल्टी इम्पोज भी कर सकता है कि अगर कचरा फेंका या रेलवे स्टेशन पे थूका तो 200 रुपए का जुर्माना है। तो प्रोहिबिशन है, आपको नहीं करना है ऐसा, लेकिन आप करेंगे तो आप इलीगल काम कर रहे हैं। और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, या फिर एक सिविल सूट आपके खिलाफ उस टॉपिक पे, उस इशू पे फाइल किया जा सकता है। मतलब आप किसी का एक सिविल राइट वायलेट करेंगे तो आपके खिलाफ एक सिविल सूट फाइल हो सकता है। ये एक सिविल नेचर की बात कर रहा है, एक सिविल एक्शन की बात कर रहा है कि सिविल एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है। तो दिस विल अमाउंट एज इलीगल, इसको बोला जाएगा इलीगल। क्लियर है? तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कहानी पे हम वापस आते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहता है दो या दो से ज्यादा लोग अगर किसी इलीगल एक्ट को करते हैं, या कोई एक्ट जो कि इलीगल नहीं है लेकिन इलीगल मीन से करेंगे, सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो वो जो दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। अगेन मैं आपको बताता हूँ, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में दो ही लोग होते हैं, या दो से ज्यादा चलेंगे, या दो से कम चल सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव जैसा ऑप्शन है। सो आंसर अगेन आई एम सेइंग 2 और मोर। मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम कितने भी लेके आइए। जैसे मुस्लिम मैरिज में क्या है, मिनिमम 2 members, मेल members आर रिक्वायर्ड फॉर साइनिंग दैट निकाह नामा, इनके प्रेजेंस में ये विटनेस थे और शादी हुई। तो 2 मिनिमम चाहिए, 100 हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, 2 तो चाहिए। Provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. Now proviso is saying a very important thing. बोले just because you communicated कि अच्छा ऐसा है ठीक है, लेकिन इन कम्युनिकेशन के बाद बियॉन्ड दिस कम्युनिकेशन भी कोई ना कोई एक्ट आपका होना चाहिए, चाहे वो दोनों में से किसी एक पार्टी का भी है, रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, रिलेटेड टू दैट इलीगल एक्ट, और रिलेटेड टू दैट इलीगल लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। दोनों में से किसी पार्टी ने कम्युनिकेशन के बाद फर्दर कोई एक्ट कर दिया, देन वी आर क्लियर ऑन दिस कि अब आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कमिट कर दिया। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अगेन आई एम कमिंग, जस्ट आपने कम्युनिकेशन किया और आप चादर उड़कर सो गए, नहीं। आपने कम्युनिकेशन किया, आपने किसी को फोन करके बोला कि ऐसा ऐसा है, ये करना है, इट विल कम्स अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कम्युनिकेशन के बाद एक कोई ना कोई एक थोड़ा सा जो भी एक्ट है जिसमें आप इलीगल एक्ट करेंगे या लीगल एक्ट को इलीगल मीन से करेंगे, वो चीज अगर हो जाए
तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस माना जाएगा। आगे लिख दिया इन्होंने, इट इज इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। ये चीज मैटर नहीं करती है कि वो जो इलीगल एक्ट आप कर रहे हैं वो ही आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है। आप वो एक्ट कर रहे हैं कि यही एक्ट करना और यही चीज पाने के लिए करना है, इट इज इमटेरियल। ऑल्सो इट और मेयरली इंसिडेंटल, या फिर आप जो इलीगल एक्ट कर रहे हैं वो किसी चीज का एक एस्पेक्ट है, पूरा एस्पेक्ट नहीं है। मेरा तो ये मन था, ये मन नहीं था, ये मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं था, मेरा तो ये ऑब्जेक्ट था, ये तो इसका वन एस्पेक्ट है, मेरे चार एस्पेक्ट और भी है, देखो ना। नहीं, इट इज इमटेरियल। आपका इलीगल एक्ट है, कम्युनिकेशन हुआ दो लोगों के बीच में, एग्रीमेंट बना है, आपने फर्दरेंस में कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक्ट कर दिया है जिससे आप एक्ट करने को तैयार हैं, इलीगल एक्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नाउ इन सबसेक्शन 2 पनिशमेंट इज गिवन। सो पनिशमेंट में लिख दिया है कि अगर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक ऐसे ऑफेंस की करेंगे जिसका पनिशमेंट डेथ है या लाइफ इम्प्रिजमेंट है या 10 या 2 साल से ज्यादा का है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर आप कर रहे हैं किसी ऐसे ऑफेंस का जिसका पनिशमेंट 2 इयर्स से ज्यादा का है या लाइफ इम्प्रिजमेंट है या डेथ पेनल्टी है, तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगा, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अवेटेड सच ऑफेंस। जैसे कि वो एक्ट आपने ही अवेट किया है। तो अब अबेटमेंट में कैसा पनिशमेंट मिलता है अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि जिसने अबेटमेंट किया वो ही सेम पनिशमेंट उस पर्सन को मिले। मैंने अबेट किया, वही सेम पनिशमेंट मुझे मिलेगा जिस ऑफेंस के लिए मैंने अबेट किया है, चाहे कोई थर्ड पर्सन जाके ऑफेंस कर रहा है। अबेटमेंट में क्या होता है, आप किसी को इंस्टिगेट करते हैं, किसी थर्ड पर्सन को, वो जाके ऑफेंस करके आता है, आप खुद नहीं जाते। तो इन दिस केस आपको भी वही पनिशमेंट मिलता है जो वो एक्ट करके आ रहा है, क्योंकि वो आपके डायरेक्शन पे काम करके आएगा। तो यहाँ पे भी लिख दिया है कि 2 साल से ज्यादा का है तो अबेटर को जो पनिशमेंट मिलेगा वही आपको मिलेगा। और अगर 2 साल से कम का है पनिशमेंट किसी ऑफेंस का जिसकी आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो लिख दिया है नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स और विद फाइन और बोन। तो 6 महीने से ज्यादा की आपको सजा नहीं मिलेगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर 2 साल से कम वाले ऑफेंस का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आप करते हैं। क्लियर है कहानी यहाँ तक? बताइए, कोई डाउट, कोई समस्या अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें? कल की क्लास में एक चीज और हुई थी जिसमें हमने टाइप्स ऑफ पनिशमेंट पढ़े थे। तो अब वी हैव नाउ 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट: डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट, imprisonment of term that can be rigorous or simple, fine, forfeiture of property and community service, that all given under section number 4 में दिया है, आई गेस ये सारा। यस, सेक्शन 4 डील्स विद द पनिशमेंट। तो सारे टाइप के जो पनिशमेंट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 है। तो 6 टाइप्स के जो पनिशमेंट्स हैं वो सारे सेक्शन 4 के अंदर मेंशन। कल की क्लास में थोड़ा सा लायबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। कुछ प्रोविजंस जो आज बताए आपको क्लास में कि देयर आर सम ऑफेंसेस वेयर ओनली एक्ट इज इनफ फॉर कंसिडरिंग एन ऑफेंस। तो वो कौन कौन से ऑफेंस हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे। प्रिपरेशन कौन कौन से ऑफेंस में पनिशेबल हो सकती है, जैसे आज हमने एक एग्जांपल डकैती का देखा है, और कौन कौन से ऐसे ऑफेंस है जिसमें प्रिपरेशन पनिशेबल है वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम फर्दर जो भी आगे चीजें आएंगी उनको हम डील करेंगे। आर ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लियर। हम चाहते हैं हर वीक में, हर 2 वीक में, दैट इज इन द 15 डेज, क्योंकि सैटरडे आपका टेस्ट वगैरह और जो क्वेश्चन आंसर का पैटर्न समझने में जाएगा। तो टोटल 10 क्लासेस हम लें और उस 10 क्लासेस में आपकी एक एक यूनिट को फिनिश करा दिया जाए। तो बाय 15 अगस्त आपका क्रिमिनल लॉ
आपका यूनिट खत्म हो जाएगा मेरी साइड से, और उधर आईटी और आईपीआर का यूनिट खत्म हो जाएगा। तो प्लीज आपने फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना है। दैट इज़ ओनली माई रिक्वेस्ट। इसके अलावा आपका अगर कोई और डाउट है देन प्लीज आस्क। So Rahul sir will take the class now. Maybe just in 2 minutes or after some minute, some time, he'll just write the message in the group. Clear? And this recording I will upload on the Google Classroom as well. Okay. See you tomorrow. Thank you, sir.